Dear students, you can see the topic of today. So this is the sound of language. And as you know that in our previous lectures, so or rather in the initial classes, so we discussed that linguistics is actually the analysis of language at the various linguistic levels. So that's what we say that linguistic studies the language scientifically, and where we defined or we discussed that study means that when a linguist analyzes the language. Analysis का आपके ध्यान में होगा. Analysis means that when we break up a bigger unit into the smaller chunks, so that we can read it in detail. And number two, that analysis perspective is very important. From which perspective we are analyzing something. Number three, I told you that the level of linguistic analysis, that means to say that how much deep we are going to analyze the phenomena that we are analyzing. और फिर आपको याद होगा जो हमने बेसिक डिस्कस किया था that when we analyze or when we break the language into the smaller units, the first smallest meaningful unit that emerges is the sounds. जो सबसे जो smallest unit है which constructs or which composes our language. So this is the sounds of language, because the sounds come together according to a particular syntax, and then they make the meaningful units, which may be morpheme, which may be words, and then later on when we string them together, so according to a particular syntax, that becomes the sentence. लेकिन जो smallest unit है वो हमारा sounds है. अच्छा, ये आप समझ लेने की जरूरत है. एंड और फिर आपको दूसरा एक और फिनोमेना भी याद होगा, हमने बोला था डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स. ये नहीं, जो अब 20th सेंचुरी में जो लिंग्विस्टिक्स की जॉब बेसिकली बनी, वो बनी फ्रॉम प्रेस्क्रिप्टिव टू द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. Mean to say that the actual job of a linguist is to describe the language without going into any judgment that it is right, it is wrong, or it should be, or it should be. A linguist simply analyzes the language or describes the language, that how the different sub-functions or the subsystem they work into the language. वो simply describe कर देगा उसको. So we can take any language of the world and then we describe the sounds of the language. What are the different types of the language? What are the different types of the sounds, and उनकी categories करना, and how these sounds are being produced. What are the places of the production of the sounds? What are the manners of the production of the sounds? What are the vowels? What are the consonants? How many morphemes? How many phonemes are present in the language? How many phones are there? Me to say that these are the discussions where we discuss and categorize the different kinds of the sounds. फिर एक और फिनोमेना है कि हम साउंड को मिला के डिफरेंट syllables बनाते हैं, accent बनाते हैं, pronunciations बनाते हैं, all these things that so which are related with the sounds, the production of the sound, the reception of the sound, the transmission of the sound. So they are called इस जो branch of knowledge को, इस field of knowledge को हम बोलते हैं phonetics and phonology. So today we are going to describe, or we are going to discuss a very important, a very fundamental and the basic branch of linguistics. This is phonetics and phonology. Phonetics and phonology that actually discusses and describes the sounds of a language. किसी language के sounds को describe करती है. So इसमें we'll try to discuss some basic concepts of the sounds and some basic categories of the sounds के sounds की basic categories क्या हैं, वो किस तरह हम उनको देख सकते हैं. So this is all we will be discussing today. अच्छा, एक यहाँ पे आप इस स्लाइड सामने देख सकते हैं यार, लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि इसको हम लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि फोनेटिक्स को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लें. The subject of linguistics is a scientific study of the nature, use, and variety of all aspects of language. The subject of phonetics is the scientific study of nature, use, and variety of all aspects of speech. यानी लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं, और फोनेटिक्स पर्टिकुलर है, उसमें हम स्पीच को, साउंड को डिस्कस करते हैं. The name usually given to the study of spoken language from a phonetic perspective, following the example of लेट पॉजिट. अच्छा, आप जरा थोड़ा सा अब इधर बेसिक जरा कैटेगरीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. ये रीडिंग आप घर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आई विश के आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन and I would like to clear the concepts
देखें, phonetics is actually concerned with the sounds, with the human sounds. So number one, we are going to categorize the sounds into three main categories: phones, phonemes, and allophones. तो हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, देखिए बात, we have more than 7,000 languages and all the languages they do have their phones, allophones, phonemes सबके होते हैं. यहाँ जरा तुमसे इस कॉन्सेप्ट को जरा अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट डू आई मीन बाय फोन, फोनीम एंड एलोफोन. यानी जब हम एनालाइज करते हैं साउंड्स को, तो फर्स्ट इज दैट वी कैटेगराइज द ह्यूमन साउंड्स इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. नंबर वन द फोन्स, नंबर टू द फोनीम्स एंड नंबर थ्री द एलोफोन्स. किसी भी लैंग्वेज की साउंड्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. अब इसको जो अंडरस्टैंड करें, व्हाट डू वी मीन बाय द फोन. देखिए फोन क्या है? फोन इज ए वाइब्रेशन और वेव caused by an object. Any sound which is produced by human beings and that can be used for the purpose of the language, for the purpose of the speech, is called phone. तो ये थोड़ा सा देख ले, मैंने बड़ी ब्रॉड सी, बड़ी लूज किस्म की डेफिनेशन की है कि एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लैंग्वेज और स्पीकिंग इज कॉल्ड फोन. कोई भी साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और दैट कैन बी यूज्ड और की जा सकती है, ठीक है, और दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पीकिंग, इसे हम बोलते हैं फोन. बा, था, का, ला, सा, I, ua, ia, e, a, all these sounds they are called phones. तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड कर लें दैट द ह्यूमन साउंड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ स्पीकिंग के लिए यूज हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड phones. All the sounds विदाउट गोइंग इनटू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कि भाई ये पा की साउंड है, ये अरबिक में यूज होती है या नहीं होती है, ये तो उर्दू में यूज होती है, इंग्लिश में यूज होती है. रा की साउंड है और सिर्फ उर्दू में यूज होती है, इंग्लिश में नहीं होती. तो सा की साउंड है वो उर्दू में नहीं. तो मी टू से सिंपली स्पीकिंग, अभी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट दिस साउंड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस, बट हम इसको ह्यूमन बींग्स के बारे से बात कर रहे हैं. that any sound which is produced by human beings and can be used for the purpose of language or स्पीकिंग, सो दिस इज कॉल्ड फोन. ये बड़ी ब्रॉड से डेफिनेशन हमने कर दी है, जिसे हमने बोला फोन. तो फोन इज ए वाइब्रेशन और वेव कॉज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई वाइब्रेशन या वेव, जाहिर सी बात है ये तो साइंटिफिक से बात है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड वी नीड सम मीडियम. आपको मीडियम चाहिए ना, तो हम एयर का मीडियम यूज करते हैं, उसके अंदर वाइब्रेट करते हैं, उसके अंदर वेव्स क्रिएट करते हैं. सो द क्रिएशन ऑफ द वेव्स और द वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोन. This definition comes from acoustic and underlying physical characteristics of sound of speech. Sounds are instances of phonemes in real speech, but it is simply sound are everything we hear with our ears. Here are some example of sound: kha, ba, fa, u, da, e, li. Okay, e, all these sounds. So they are the phone. For example, the word, we have a word cat. So in this one word we have three sounds: kha, a, and था. तो नंबर वन, ये फोन्स हमने बात की, ठीक है. अब नंबर सेकंड कैटेगरी ऑफ द साउंड हम मजीद कैटेगराइज कर रहे हैं. देखिए एक्चुअली व्हाट हैपेंस, अच्छा आप देखें ये जो साउंड के प्रोडक्शन जो है, दिस इज एक्चुअली अ फिजिकल फिनोमेना. फोन्स की जो प्रोडक्शन है, इट इज अ फिजिकल फिनोमेना. एनिमल्स also produce different kinds of the sound. ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड इज नॉट समथिंग यूनिक टू अस, इज नॉट समथिंग पर्टिकुलर टू अस. एवरी क्रिएचर या बहुत सा, आप देखिए एनिमल्स हैं, इवन बर्ड्स हैं, दे प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द साउंड्स. वो भी डिफरेंट किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो सिंपली स्पीकिंग वी कैन से दैट द प्रोडक्शन ऑफ द फोन्स इज एक्चुअली अ फिजिकल फिनोमेना. आपका ब्रेन में लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी है या नहीं है, अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे. सिंपली स्पीकिंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल साउंड्स या फिजिकल फिनोमेना जो साउंड्स के, इसको बोलते हैं फोन. अब आ जाए नंबर टू पर. देखें एक्चुअली व्हाट हैपेंस. देखें फॉर एग्जांपल, आई हियर अ साउंड हैट, ये खा
ए था, मैंने साउंड सुनी। अब देखें इसको जरा थोड़ा सा यहाँ अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ना आमतौर पर स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस बहुत अरसे तक भी नहीं पता चलता। तो इसको मैं आई विश कि आपको बड़ा क्लियर हो, फोन्स क्या होते हैं और फोनीम्स क्या होते हैं, एल्फोन्स क्या होते हैं। हमने फोन्स डिस्कस कर लिया, अब मैं सेकंड आपसे बात कर रहा हूँ फोनीम्स की। देखें लेट्स से मैं एक साउंड सुनता हूँ कैट, खा, ए, ठा। अब मैंने ये जो साउंड सुनी खा की, बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये फिजिकली दिस साउंड्स सो रीचेस माय ईयर, फिजिकली जाती है ना, इन एक वाइब्रेशन जो है मेरे यहाँ पर जाते हैं। अच्छा व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अच्छा these vibrations are converted into the electric pulses, इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे हर चीज होती है, हम देख रहे हैं तो हमारे जो विजुअल है वो भी इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट हो रहा है, हम किसी चीज को टच कर रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपली व्हेन वी हियर समथिंग, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक पल्सेस, और हमें वो साउंड एक्सक्यूज मी हमारा। सर। जी प्लीज। सर वो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो स्लाइड शो नहीं हो रही, तो इशू बन रहा है। कुछ कुछ शो हो रही है। सर हमें तो हो रही है, 7-8 हैं जिन्हें नहीं हो रही शो। अब मैं चलो दोबारा मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा जी शेयर कर थैंक यू। देता हूँ। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। इट्स सो भी जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करें, देखिए मैंने कहा व्हाट एक्चुअली हैपेंस दैट व्हेन वी हियर अ साउंड, एक फिजिकल साउंड होती है, वाइब्रेशंस हमारे जो है ईयर को टच करती हैं, एंड देन दीज वाइब्रेशंस और द फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक पल्सेस। अच्छा इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन में चलेगी। अच्छा अब देखिए व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन द ब्रेन, नाउ इन द ब्रेन these sounds are converted into the social meanings, इनके अंदर मीनिंग, सोशल मीनिंग्स में कन्वर्ट होती हैं साउंड्स। अब जैसे मैंने एक साउंड बोली कैट, अब कैट जैसे ये साउंड आपके ब्रेन में गई, तो ये इट्स नॉट ओनली अ नॉइस। देखिए एक तो मैं आपसे कुछ साउंड बोलता हूँ चीप यांग चू, अब देखिए जैसे मैंने आपसे ये साउंड बोली तो ये आपके ईयर में गई, लेकिन इसके ये मीनिंग में कन्वर्ट नहीं हुई। देखिए जब मैंने दूसरी साउंड बोली cat, bat, book, now you see that these sounds are being converted into the social meanings। मैंने कहा lion, मैंने किसी का you are a lion। अब देखें जब हम ये जो वर्ड्स आपने बोले तो these sounds are now converted into the social meanings, meaningful unit, यानी साउंड अब मीनिंगफुल हो गई। ठीक है, तो when these sounds are converted into the meaningful sounds, now these meaningful sounds are called phonemes। इन सिंपल जो साउंड्स आपकी हैं फिजिकल साउंड्स हैं, दे आर कॉल्ड फोन्स। ठीक है, बट व्हेन दीज साउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू द मीनिंगफुल साउंड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन में पूरा फंक्शन होता है कि हम किस तरह, हमारा एक लैंग्वेज का सेक्शन होता है जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है, और वहां से हम इसको सोशल मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं, मेमोरी से मैच करते हैं, इसको रेफरेंसेस देते हैं, रेफरेंस सिग्निफायर को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, उसको सिग्निफाइड में लेकर आते हैं, सोशल इंटरप्रिटेशन करते हैं। इन सिंपली स्पीकिंग, अभी इस फिनोमेना में डिटेल से मैं नहीं जा रहा, लेकिन टू द पॉइंट इज दिस दैट नाउ these sounds are not only the sounds, but these sounds are the meaningful sounds, and these meaningful sounds are called phonemes। इन मीनिंगफुल साउंड हमारी phonemes होंगी। तो यानी this is the main difference between the phones and the phonemes। Example you can see pig and big, pa and ba। तो देखिए अब pa और ba जो है they are discrete sounds, mean to say they are giving the different meanings। pa is giving a different meaning, ba is giving a different meaning। pen and pan, a or a, these are the two discrete sounds, they are giving the two different meanings। pen का meaning और है, pan का meaning और है। Similarly sing, sink and think, so sa and sa, so you will see that there are two discrete sounds because they are giving two meanings, दो different meanings इनके हैं। So every meaningful sound of a language, of a particular language is called phoneme। अच्छा आप जरा देखें डिफरेंस ऑफ फोन्स और फोनीम में देखें।
देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साउंड है पा, पा, ठीक है, पेन, ये पाकिस्तान। अच्छा, यू विल सी दैट दिस इज अ फोन, यस, क्योंकि साउंड है। दिस इज अ फोनीम, बिकॉज हमारे यहाँ पर पा का एक मीनिंग है ना, पेन में कहूँगा तो इसका एक मीनिंग है। बट यू विल सी फॉर द अरेबिक लैंग्वेज पा इज नॉट ए फोनीम, क्योंकि अरेबिक में पा की साउंड एग्जिस्ट नहीं करती मीनिंग के लिए, एंड दे डोंट हैव एनी मीनिंग फॉर दिस साउंड। तो आप यू अंडरस्टैंड करेंगे पा का जो वर्ड है, दिस इज अ फोनीम फॉर उर्दू लैंग्वेज, बट दिस इज ओनली अ फोन, ये सिंपल एक साउंड है फॉर अरेबिक लैंग्वेज, बिकॉज उर्दू लैंग्वेज में इट डज हैव अ मीनिंग, और अरेबिक लैंग्वेज में इसका मीनिंग नहीं है। सिमिलरली अदर साउंड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह आप देखें पा के जो मैं साउंड की, दिस इज अ फोनीम फॉर उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश में भी इसका मीनिंगफुल वर्ड है और उर्दू में भी है, लेकिन अरेबिक में इस साउंड का कोई मीनिंग नहीं है। तो दिस विल बी ओनली अ फोनीम फॉर इंग्लिश एंड उर्दू फोनोलॉजिकल सिस्टम, बट इट विल ओनली बी अ फोन फॉर अरेबिक लैंग्वेज। इस तरह आप देखें तो डिफरेंट साउंड्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। तो यानी इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फोनीम जो हमारे यहाँ पे फोनीम है वो दूसरी जगह भी फोनीम होगा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल आप देखें, उर्दू को देख के मैंने बोला जी फल, और मैंने कहा कि फल, फल एंड फल। अच्छा, आप देखें हमारे यहाँ पे पा और फा, इनके दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फल का मीनिंग और है, फल का मीनिंग और, इट मीन्स कि पा एक अलग मीनिंगफुल साउंड है और फा एक अलग मीनिंगफुल साउंड है। तो वी विल से दैट पा एंड फा आर टू फोनीम्स, मैंने बोले दो फोनीम्स हैं, बट फॉर उर्दू लैंग्वेज। अच्छा, इंग्लिश में आप आ जाएं, पा एंड फा, ये दे आर नॉट, दे आर गिविंग द सेम मीनिंग। मैं कहूँ पाकिस्तान, मैं कहूँ पाकिस्तान, तो बोथ विल बी हैविंग द सेम मीनिंग, इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। मैं कहूँ पेन और मैं कहूँ फैन, तो इट विल हैव द सेम मीनिंग। इट मीन्स कि पा और फा जो है, दे आर टू डिफरेंट फोनीम्स इन उर्दू लैंग्वेज, बट दे आर ओनली वन फोनीम इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इन इंग्लिश में पा और फा में डिफरेंस मीनिंग का नहीं आ रहा। तो अब ये पहले ये सेकंड साउंड थी हमारी, पहले हमने बोला फोन्स, फिर सेकंड हमने बात की फोनीम। अब देखिए फोन जो है दिस इज जनरलाइज्ड, उसका ताल्लुक ह्यूमन लैंग्वेज के साथ है। फोनीम जो है दिस इज रिलेटेड एंड स्पेसिफिक टू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज, फोनीम का ताल्लुक एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ है। इंग्लिश के फोनीम्स अलग हैं, उर्दू के फोनीम्स अलग हैं, अरबिक के फोनीम्स अलग हैं। ऑल दिस लैंग्वेजेस हैव देयर डिफरेंट फोनीम्स। जी प्लीज पीछे एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो जबकि आप देखिए फोनीम जो है, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के फोनीम्स दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम उर्दू लैंग्वेज के फोनीम्स, उर्दू लैंग्वेज फोनीम्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज फोनीम्स। तो फोनीम्स आर स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक लैंग्वेज। अच्छा, नाउ कम टू द थर्ड। अब थर्ड कैटेगरी आ जाए साउंड्स की, इस वर्ड पे से एलोफोन्स। देखिए एलोफोन्स को आप अंडरस्टैंड कर लें। देखिए वन साउंड कैन बी प्रोनाउंस्ड इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया आपको, पा, ठीक है, तो हम नॉर्मली जो इंग्लिश पीपल है, ठीक है, दे प्रोनाउंस लाइक फा, पाकिस्तान, फैन। So अच्छा, और when this sound come for example at the middle or the end of the word, तो फिर फा नहीं प्रोनाउंस करते। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। आप एक कप नहीं बोलेंगे, इसको आप कप बोलेंगे, सिंपल। to mean to say that the same sound is being pronounced differently। इसी तरह अगर हम पा को प्रोनाउंस करेंगे तो विल प्रोनाउंस इन डिफरेंट वे, ठीक है, डिफरेंट एक्सेंट में, डिफरेंट डायलेक्ट्स में। अरेबिक में आप देख लें, दुआत के साउंड है, कहीं कोई दुआत कहता है, कोई जुआत कहता है, इसको कोई बोले जॉलिन पड़ेगा, कोई डॉलिन पड़ेगा, बट यू विल सी दैट मीनिंग्स विल नॉट बी चेंज। डॉलिन का मीनिंग भी वही है, जॉलिन का मीनिंग भी वही है,
पाकिस्तान का मीनिंग भी वही है, पाकिस्तान का मीनिंग भी वही है. तो इट मीन्स we can see that due to the individual differences, due to the regional or the territorial differences, due to the position of the sounds, or due to some other conditions, we'll see that the same sound is being pronounced differently, but meanings remain the same. पाकिस्तान की मीनिंग भी वही है, पाकिस्तान की मीनिंग भी वही है, ठीक है. और काइट की मीनिंग भी वही है, खाइट की मीनिंग भी वही है, कैट की मीनिंग भी वही है, खैट की मीनिंग भी वही है. तो यू विल सी दैट द साउंड इज बीइंग प्रोनाउंस, नॉन नेटिव स्पीकर किसी और वे से प्रोनाउंस कर रहे हैं, नॉन नेटिव स्पीकर किसी और वे से प्रोनाउंस कर रहे हैं. Simply the point is that the same sound is being pronounced differently by the different people in the different situation without changing the meaning, and the meanings, they remain intact, the meaning remain the same. तो इसे हम बोलते हैं वेरिएंट इन वेरिएंट ऑफ द सेम साउंड. So when the same sound is pronounced differently with a variant mode or in a variety of the ways, so this is called allophone. In allophone is actually the variant of a phoneme. In एक phoneme जो है, this is being pronounced in the variant style by the variant ways. एक phoneme को different ways के जरिए से हम pronounce कर रहे हैं. तो this is what we say allophones. तो allophones जो है, अच्छा लेकिन थोड़ी सी एग्जांपल देख लीजिए प्लीज. आप जिसमें मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा उर्दू में पल एंड फल, कल एंड खल. अच्छा आप देखें उर्दू में पल और फल, पा एंड फा, दे आर क्रिएटिंग टू डिफरेंट मीनिंग्स. तो हम क्या कहेंगे, दैट दे आर टू डिफरेंट फोनीम्स. अच्छा इंग्लिश में आप देखें पेन एंड फैन, तो यू विल सी दैट द सेम साउंड इज बीइंग प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली. ये सेम साउंड जो है डिफरेंटली प्रोनाउंस हो रही है, बट मीनिंग आर द सेम. तो हम क्या कहेंगे, दैट दे आर टू एलोफोन्स, दे आर टू एलोफोन्स. ये दो एलोफोन्स हैं क्योंकि इनके मीनिंग डिफरेंट नहीं है. तो जब तक मीनिंग सेम रहे और डिफरेंट वे से प्रोनाउंस करें, तो ऑल दीज वेरिएंट्स आर कॉल्ड एलोफोन्स. और जब मीनिंग्स आपके चेंज हो, दे आर कॉल्ड फोनीम्स. और जब कोई मीनिंग्स ना हो, सिंपली साउंड्स हो, तो दे आर कॉल्ड फोन्स. तो फोन्स, फोनीम्स एंड एलोफोन्स. ये लास्ट पॉइंट फिर इसके साथ देख ली, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा. अच्छा मैं देखें, नॉर्मली आपने सुना होगा, हम कहते हैं जी द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज आर डिस्कस्ड इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. हम दोनों नाम इकट्ठे लेते हैं. आप जरा नाउ नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. Phonetics is the branch of linguistics that actually deals with the human sounds, with the production, reception, and articulation of human sounds. And the minimal unit in the phonetics is the phone. इन फोनेटिक्स जो है वो साउंड्स की फिजिकल प्रोडक्शन को, उनकी रिसेप्शन को, उनके आर्टिकुलेशन को डिस्कस करती है. और उसका बेसिक यूनिट क्या है, फोन्स. इन फोन्स आर डिस्कस्ड इन फोनेटिक्स. एंड फोनोलॉजी जो है, ठीक है, फोनोलॉजी इज स्पेसिफिक टू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड द मिनिमल यूनिट ऑफ फोनोलॉजी इज फोनीम. फोनोलॉजी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिस्कस करेगी, और फोनोलॉजी में जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो एक्चुअली फोनीम है. जो आपका फोन है वो एक एक्चुअली फिजिकल प्रोडक्शन है, और जो आपका फोनीम है वो मेंटल प्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक जहन का कॉन्सेप्ट है. सिर्फ एक चीज जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, सिंपल. इट डजंट एग्जिस्ट क्या करते हैं, एलोफोन्स एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली. So that's the difference between phonetics and phonology. Phonetics is generalized, and this is related with the human sounds, while we see that phonology is actually specific to the specific language and then discusses the phonemes. Ji, please, so far, if you have any questions, so I'll be happy to take your questions. Otherwise, we'll go next. सर ये एलोफोन का जरा समझ नहीं आया. अच्छा जी, आप में से किसी और को समझ आया है एलोफोन्स का? कार आपको समझ आया है? यस सर. मैं जी वकार, आपको समझ आया है?
सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे थोड़ा सा बता दो। अच्छा, आप पूछ रहे हैं, तो जरा देखते हैं और किसी को समझ किसको आया है। आप में से है किसी को जिसको समझ आया हो? जी सर समझ आया है। आप कौन बात कर रही हैं? उरैजा। उरैजा, जरा जी जरा जरा बताएं, जरा वकार को एक्सप्लेन करें, क्या समझ आया आपको? जी सर, आपने कहा था कि ना मतलब जो एलोफोन्स हैं उनमें साउंड लैंग्वेज के जो साउंड्स होते हैं ना उनमें मीनिंग्स जो होते हैं वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब जैसे आपने फोनीम्स में बताया था कि साउंड्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो मतलब हर लैंग्वेज के डिफरेंट होते हैं, मतलब इंग्लिश पीपल के डिफरेंट होते हैं, उर्दू में चेंज होते हैं। लेकिन जो एलोफोन्स हैं उनमें जो साउंड्स की प्रोडक्शन की जो लैंग्वेज के जो मीनिंग्स होते हैं ना वो चेंज रहते हैं। जैसे आपने बताया था कि जो पा है और जो पा जो बोल रहे थे आप, तो वो जी सेम ही जी, रहेगा एलोफोन्स पे। बिल्कुल मीनिंग सेम रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो हाँ, एक साउंड को प्रोनाउंस करने के डिफरेंट वे। जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन जी, मीनिंग सेम रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी ओके सर, गुड, वेरी थैंक यू। गुड। जी वकार, क्लियर हुआ आपको? बड़ा अच्छा यस इन्होंने सर, राजा यस ने सर, एक्सप्लेन किया इसको। ठीक है थैंक जी, यू वेरी। रजा। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, किसी और के जहन में कोई और क्वेश्चन आ रहा हो? अच्छा, इट्स चलिए क्लियर ठीक। ओके सर। सर जी, क्लियर जी सर जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी। तो देखिए, नाउ यू कैन सी दैट इन फ्रंट ऑफ यू द फोनोलॉजी। सो वी सी दैट फोनोलॉजी, इसमें फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। फोनेटिक्स जो है उसको वी कैन डिवाइड इनटू फर्दर थ्री टाइप: अकूस्टिक फोनेटिक्स, auditory phonetics, and articulatory phonetics. So the sub branch of linguistics, या branch of phonetics, that discusses with the physical production of the sounds, उनकी physical properties, कि उनके wavelength, उनकी speed, उनकी frequency, उनके vibration patterns को discuss करें. This is called acoustic phonetics. Acoustic phonetics. And the sub branch of phonetics that discusses with the perception of the sound, कि sound किस तरह यहाँ तक पहुँच रही है, and how it is being converted into the electric signals. So the perception of the sound is called auditory phonetics. And the branch of phonetics which deals with the articulation, how the sound is being produced, what are the places of the articulation, what are the manners of the articulation, which parts are responsible for producing the different sounds. So this is called articulatory phonetics. So phonetics तीन branches हो गई further: acoustic phonetics, auditory phonetics, and articulatory phonetics. So you can see that the first is the articulatory level of description, which accounts for the changing configurations and other actions of the speech of the speaker's vocal apparatus. Number two, the second is the acoustic level, which consists of statement about the physical consequences of articulatory actions in terms of vibratory patterns of air molecules within the vocal apparatus and in the air between the speaker and the listener. Number third, finally, the third level of description concerns the perceptual impressions of the listener receiving the acoustic information. तो हमने तीन कैटेगरीज के साउंड डिस्कस की, और फिर इसी तरह जो फोनेटिक्स फोनोलॉजी का डिफरेंस हमने डिस्कस किया, और फोनोलॉजी के हमने तीन लेवल या तीन ब्रांचेज या तीन टाइप्स डिस्कस की: अकूस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स या परसेप्चुअल फोनेटिक्स, और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। जी, यहाँ तक आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन हो तो हम तो ले, अदरवाइज थोड़ा सा बस मैं आपको ये जरा मैं आपको थोड़ा सा बस अभी लास्ट में 5 मिनट्स आई वुड लाइक टू, इसको बाद में प्लीज इस जो स्लाइड आपके सामने, इसको बाद में जरा डिटेल से आप देखिएगा। लास्ट 5 मिनट्स है, तो आई वुड लाइक कि इसको हम करके आज का लेक्चर फिनिश करें। यू कैन सी दैट द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे is the introduction of the speech organs, or that what parts of our speech system are involved in the production of the sounds. तो इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी सारे लेबल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, सारे पार्ट्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोडक्शन ऑफ आवर साउंड। इसको फिर आगे हम देखेंगे, क्योंकि आगे जो आगे जो फोनेटिक्स में डिस्कस किया जाता है आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स में, दैट व्हाट वी डिस्कस द प्लेसेस ऑफ द आर्टिकुलेशन एंड द मैनर ऑफ द आर्टिकुलेशन। जब हम किसी
आगे हम देखेंगे वाउल्स को डिस्क्राइब करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, देन आई लेट यू नो कि विच ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग विच कॉन्सोनेंट और विच वाउल। तो एनीवे इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी डिफरेंट जो आपके साइंस हैं, ये ए देखें यहाँ पर, ठीक है, इनको इन ऑर्गन्स को आपने याद रखना है क्योंकि बिकॉज आगे हम इनका रेफरेंस देंगे सिंपल। तो ए अपर लिप्स, ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने में। बी लोअर लिप्स, यहाँ पे आप नीचे लिखे हुए इसको ना देखें, आप सामने जो फिगर है उसमें एबीसी को आप करते रहें, रीड मैं कर रहा हूँ ताकि वहां से आप सिंपली आपको आइडिया हो कि विच ऑर्गन इज लोकेटेड देयर। सो ए अपर लिप, बी लोअर लिप, सी अपर टीथ, डी लोअर टीथ, ई एल्विलर रिज। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप अपने अपर टीथ से थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आपको एक रफ बोन स्ट्रक्चर नजर आएगा, हार्ड रफ बोन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एल्विलर रिज। एफ हार्ड पैलेट, एल्विलर रिज से थोड़ा पीछे चले जाएं, आपको प्लेन एक रूफ नजर आएगी, हार्ड पैलेट। जी वेलम, उस हार्ड से मजीद पीछे आप चले जाएं, आपको एक सॉफ्ट पार्ट नजर आएगा, ठीक है, तो सॉफ्ट पैलेट। एच यूबुला, वो जो हमारे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूबुला। अब देखिए ये चारों बेसिकली एक ही सेक्शन के डिफरेंट नेम है, एल्विलर रिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूबुला। एक स्ट्रक्चर इकट्ठा है यहाँ से। पहले देखें आपका एल्विलर रिज है, फिर आपका हार्ड पैलेट है, फिर सॉफ्ट पैलेट है, फिर यूबुला है। आई फेरेंस, जब यूबुला से हम नीचे चले जाएं तो जो आपका विंड पाइप है, ठीक है, जो विंड पाइप आपका जा रहा है नीचे, तो दिस इज व्हाट वी से फेरेंस। ये बॉडी ऑफ द टंग, जो आपकी यानी टंग है, दैट्स डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको हमने बोला। अच्छा, इसमें आप देखिए क्या बॉडी टंग को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। के टिप ऑफ द टंग, जो आगे बिल्कुल आपकी टिप है। एल ब्लेड ऑफ द टंग, टिप से थोड़ा पीछे जाएं तो ब्लेड ऑफ द टंग होगा। एम फ्रंट ऑफ द टंग, ब्लेड से थोड़ा पीछे जाएं तो जो टंग का है हिस्सा उसको हम बोलते हैं फ्रंट ऑफ द टंग। एन बैक ऑफ द टंग, जो और पीछे जाएं तो उस सेक्शन को हम नाम दिया बैक ऑफ द टंग। ओ रूट ऑफ द टंग, बिल्कुल एंड पर आ जाए तो वो आपकी रूट ऑफ द टंग। तो टंग को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग, रूट ऑफ द टंग, 5 पार्ट्स में। फिर आ जाए नेक्स्ट पी लोअर जॉ, हमारा जो ये जॉ स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। क्यू एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फेरेंस के नीचे आप जाएंगे तो आपका एपिग्लॉटिस है, जो आप जहाँ से नहीं आपका ये लंग्स और ये पाइप जहाँ से वर्टिब्रल से जो कनेक्ट होके जो सेक्शंस आ रहे हैं, तो इसमें देखें फिर हमारे पास आगे हम देखेंगे तो चलें एपिग्लॉटिस है, ठीक है, ये इस फेरेंस से नीचे का हिस्सा है। जी सलमान अली, आपने हैंड रेज के, लेकिन थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, आर हमारे पास कार्टिलेजेस ऑफ द लेरेंस, फिर से हमारा लेरेंस आ गया। फेरेंस के बाद एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के ऊपर वोकल फोल्ड होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वॉइस्ड साउंड। जब कुछ साउंड है जो उनको वाइब्रेट किए बगैर बाहर आ जाती है उसे हम बोलते हैं वॉइसलेस साउंड, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेरेंस के बाद फिर हमारा ट्रेकिया, हमारा विंड पाइप, जो लंग्स से जो हमारा विंड पाइप ऊपर आ रहा है इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ये हो गए सेक्शन सारे। दो हमारे बड़े कैविटीज हैं, खाली जगहें हैं, विच आर डेफिनेटली साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन दीज कैविटीज। टी में देखें ओरल कैविटी, यू नेजल कैविटी। सम साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेजल कैविटी, लेकिन बट मेजॉरिटी और मोस्ट ऑफ द साउंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ओरल कैविटी। तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है, ये नेम्स भी ध्यान में रखने हैं सारे, बिकॉज विल बी रेफरिंग ऑल दीज नेम्स एंड साउंड्स। हम बाद में इन सब चीज़ों को इन्हीं को रेफर करेंगे, इनको जिक्र करेंगे। तो आज जो हमने, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है कि वावल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, और फिर किस तरह साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, और इनके मैनर प्लेसेस क्या हैं, और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, और हमारी अभी लेस देन 1 मिनट क्लास है। Okay, जी, I am finished with the lecture of the today. बाकी जो remaining part है we'll discuss in the next class. तो अभी if you have any question you can ask.
इसके बाद आप रीजॉइन कर लें, क्योंकि रीजॉइन करने में हमने प्रेजेंटेशंस लेनी है, और फिर विल कंटिन्यू।